Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you all on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on these numbers, and the numbers are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और प्रत्येक सोमवार की तरह हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। हम हमेशा की तरह देश विदेश की आर्थिक कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी खास खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमसे संपर्क के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331 4444 2342 1050 या फिर 2331 0464। दिल्ली से बाहर से यदि फोन कर रहे हों या मोबाइल फोन से कर रहे हो तो 011 भी आपको इनसे पहले लगाना चाहिए। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम आपको आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार में किसी खास कंपनी की जानकारी नहीं दे सकते। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक राजीव रंजन। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए आरंभ करें अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, friends, let's begin with the headlines. Well, India and New Zealand exchanged 5 agreements, also announced the launch of negotiations on free trade agreement. Benchmark domestic indices settled the session on a positive note. Sensex jumps 341 points and Nifty closes above 22,500. And crude oil prices rise. Brent crude trades at $71.50 per barrel. भारत और न्यूजीलैंड ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भी हुई शुरू। घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के पहले दिन लाभ के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 341 अंक कुचला, निफ्टी 22,500 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $71.50 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। India and New Zealand today exchanged 5 agreements in the fields of defense, education, sports, horticulture and forestry. Both sides also exchanged the authorized economic operator mutual recognition agreement. Both countries announced the launch of negotiations on a free trade agreement and negotiations on an arrangement facilitating the mobility of professionals and skilled workers. New Zealand has joined the Indo-Pacific Oceans Initiative and has become a member of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Prime Minister Narendra Modi today held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in New Delhi. The discussions covered various aspects of India-New Zealand relations. In his press statement, Mr. Modi said they had detailed discussions on various aspects of bilateral relationship, and both sides decided to strengthen and institutionalize the defense and security partnership. He said that along with joint exercises, training and port visits, a roadmap will be prepared for mutual cooperation in the defense industry. The Prime Minister said that it had been decided to initiate negotiations on a mutually beneficial free trade agreement between the two countries. He said, along with coaching and the exchange of players in sports, both sides also emphasized cooperation in sports, science,
psychology and medicine. In a statement, Mr. Laxon said both sides looking forward to achieve a mutually beneficial free trade agreement. He said New Zealand will increase its diplomatic presence in India. So, Rajiv, how important is this bilateral agreement between India and New Zealand, and more specifically, the free trade agreement? What does it imply for both the countries? Because there is always a give and take between both. India exports pharmaceuticals to New Zealand. New Zealand wants to sell dairy. I don't know how far it has reached in that, and India wanted to resist it all along. Where do we stand now? Yes, that is a sensitive area where obviously, as you said, that New Zealand would like to sell their dairy products to us, but we will have to protect the interests of our farmers. So that will be a tricky area. लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का ये रुझान जो है, एक्चुअली ये एक बड़े ट्रेंड की तरह से देखा जाना चाहिए. जो न्यूजीलैंड के साथ भी ये समझौता हो रहा है, एक बड़े ट्रेंड का पार्ट है. और वो बड़ा ट्रेंड ये है कि सब लोग WTO से भरोसा खो चुके हैं और सबको लगता है कि हमें हर देश के साथ फिर से वो द्विपक्षीय संबंधों के दौर में वापस लौटना पड़ेगा. और खास करके अब जिस तरह से टैरिफ वॉर की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. Does it also signal that we are now, from a unipolar world, we are now moving towards trying to achieve a multipolar world where each one is many of them would be standing tall rather than just having a US or a Russia standing tall or a China standing tall? आज की तारीख में शायद ये बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन हो सकता है कि हम एक ऐसे विश्व की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें कोई पोलर सिचुएशन हो ही नहीं, कोई पोल हो ही नहीं. ओके. बड़ी बात, बड़ी खबर यदि हम इसकी आज की है, या बड़ी भविष्यवाणी कहें कि पोल विहीन दुनिया होने जा रही है. और कारोबारी दृष्टि से यदि ऐसा होता है तो ये हर पक्ष के लिए संभवतः अधिक बेहतर होगा कि अपने अपने हित की रक्षा हम आपस में द्विपक्षीय संबंधों से करेंगे. आइए चलें इस बीच बेंगलुरु हमारे नियमित श्रोता NR प्रसाद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत आपका प्रसाद साहब, सवाल पूछिए. Good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Two questions, Mr. Rajiv Ranjan. My first question is, really this valuation has come down. Many of the sectors value has come down because Sensex is around 74,000. Which is the best sector if I'm investing for the next 6 months? This is my first question. My second question is, some of the IT did well. IT companies of Indian IT companies did well in the last 3 months, but some have fallen down very badly. Why this is any difference in this IT sector alone, within the IT sector alone? Thank you. These are my two questions. जी मिस्टर प्रसाद, जहाँ तक वैल्यूएशन का संबंध है, निश्चित रूप से सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं. लगभग 16% की गिरावट अपने शिखर से दोनों दिखा चुके हैं. लेकिन इसके बाद भी अगर आप पूरे बाजार पे नज़र डालें और सारे तमाम जो अलग अलग शेयर हैं उन पे निगाह डालें, तो संभव है कि आपको बहुत सारे शेयर अभी भी ऐसे मूल्यांकन पर लगे जिनको सस्ता नहीं कहा जा सकता है. लार्ज कैप में मोटे तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि अब निफ्टी का जो वैल्यूएशन माना जा रहा है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा नीचे आ गया, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं. लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में शायद अभी भी लोगों का कंफर्ट नहीं लौटा है. अभी भी उन्हें लग रहा है कि ये अपने उचित मूल्यांकन स्तरों से ऊपर हैं. इसलिए जहां भी आपको निर्णय लेना हो वैल्यूएशन के आधार पे, आपको बहुत कंपनी स्पेसिफिक जा करके रिसर्च करके और फिर एक सोचा समझा निर्णय आपको लेना पड़ेगा. आइए हम आगे बढ़ें. हमारे साथ एक श्रोता है, आग्रह कि आप कुछ पल हमारे साथ रहें. हम एक खबर बाजार की अहम आपको दे देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे. घरेलू शेयर बाजार आज दिवाली के साथ बंद हुए हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 341 अंक यानी 0.46% बढ़कर 74,170 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 112 अंक यानी 0.5% बढ़कर 22,509 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों की दिवाली में अलग अलग रुख दिखा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.77% लाभ में रहा. स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.02% की गिरावट हुई. Well, before we move on any further, we are now joined by Prakash, calling us from Rohini, Delhi. जी प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए. जी नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम का नमस्कार. जी नमस्कार. और मेरा एक ही सवाल है कि पीछे गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड हुए थे, क्या निकट भविष्य में गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड फिर आने की उम्मीद है क्या? जी देखिए, फिलहाल
आगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किस रूप में आएंगे इसे अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो सरकार ने एक तरह से इस योजना से हाथ खींच लिए हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन सरकार समय समय पर नीतियां बनाती रहती है, परिस्थितियों को देख करके नीतियां बदलती भी रहती है। तो फिलहाल अभी ये दिख रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, या जो नई सीरीज अब नहीं लाई जा रही। ऐसा नहीं है कि जो पहले से चल रहे हैं उन्हें भी बीच में रोक दिया जाएगा, वो तो चलते रहेंगे और जो उनकी मैच्योरिटी जब तक की है तब तक वो चलेगा। लेकिन नई सीरीज अब उसकी नहीं आ रही है, ऐसा सामने दिख रहा है। आगे किस रूप में ऐसा बॉन्ड फिर से लाया जाएगा ये तो सरकार को ही तय करना है। But they were quite popular, Rajiv, because they were giving 2.5% on the money that you deposited, and considering that gold is going up like anything, it's about 90,000 rupees per 10 grams approximately. We'll come to that story later. So which means those who invested in SGBs earlier would benefit. निश्चित रूप से यह योजना निवेशकों के लिए काफी लाभप्रद रही, लेकिन सरकार के लिए शायद कहीं कुछ वित्तीय रूप से उतनी सहज नहीं रह पाई, इसलिए शायद ये फैसला हुआ है। आइए चले राजस्थान, वहां झुंझुनू से हमारे साथ हैं सुभाष जी, स्वागत, सवाल पूछिए। सुभाष जी, आप डोमिसिलरी अमाउंट मिलता है, जरा एक बार फिर से दोहरा दे सवाल। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि डोमिसिलरी अमाउंट जो हमें मिलता है एनुअली कंपनी से ट्रीटमेंट के लिए, क्या वो टैक्सेबल होता है? यानी इनका सवाल ये है कि अपनी कंपनी में जहां ये काम करते हैं वहां से मेडिकल के तौर पर, यानी चिकित्सा के लिए जो राशि मिलती है कंपनी की ओर से, उस पर टैक्स बनता है या नहीं बनता है? देखिए, इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अब मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें हर तरह की छूट जो है वो हटाई जा रही है, और उस में जो टैक्स की दरें हैं या छूट की जो सीमा है उसको इतना आकर्षक बना दिया गया है कि हर कोई नए टैक्स रिजीम की तरफ जा रहा है, जिसमें ये तमाम छूटें जो हैं धीरे धीरे कटती जा रही हैं। तो स्पेसिफिक जो इन्होंने पूछा है मुझे उसका ध्यान नहीं है, इसलिए क्षमा। G. Let's move on to have a look at the stocks in detail. The benchmark domestic equity indices settled the session on a positive note today. 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex jumped 341 points or 0.46% to close at 74,170. The National Stock Exchange Nifty 52 broke the two-day slump and added 112 points or 0.50% to settle at 22,509. The broader market indices at the BSE logged profits. The mid-cap index rose over 0.77% and the small-cap index was marginally down by 0.02%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Bajaj Financial Services rose by 3.59%, M&M gained over 2.4% and Axis Bank increased by over 2.36%. Conversely, among the top laggards, ITC dropped 0.98%, Nestle slipped over 0.75% and SBIN fell almost 0.7%. In sectoral indices at the BSE, 18 out of 21 sectors ended positive. Among the top gainers, healthcare gained 1.12% while commodities and metal rose by 0.9% each. Among the laggards, realty lost 0.4% and FMCG slipped over 0.2%. Overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,507 companies declined, 1,605 advanced and 127 remained unchanged. More on this later. Right now we are joined by Rahul Gupta calling us all the way from Gurugram. Yes, Rahul, please ask your question. Hello, all of you. My question is that the market is in correction or dip, whatever the people are saying. Which sector ETF we can see maximum possibilities in future? जी राहुल जी, अगर कुछ सेक्टर्स को आप अट्रैक्टिव लेवल्स पे देखना चाहते हैं तो उसमें एक तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक कंसेंसस जैसा दिख रहा है कि बैंकिंग सेक्टर ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई भी नहीं थी, और अगर इकॉनमी आगे बढ़ती रहती है तो उसके हिसाब से इनके जो अर्निंग्स ग्रोथ में हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ईपीएस के नज़रिए से देखना चाहते हैं, वैल्यूएशन के नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर आपके लिए कहा जा सकता है जिसको लेकर के एक्सपर्ट्स के बीच में थोड़ा कंसेंसस है।
हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। आग्रह कुछ पल बने रहें। पहले हम आपको रुपए की जानकारी देते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे मजबूत हुआ है। 86 रुपए 87 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतरदिवसीय कारोबार में 103.63 पर चल रहा था। और चलते हैं गाजियाबाद। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मनीष। मनीष जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। मेरे 2 सवाल हैं। जी। जो पहला सवाल है कि मेरे पास ना कुछ गवर्नमेंट बैंक है, पीएसयू के शेयर्स हैं करीब, जो और वो नियर अबाउट अभी 14-15% नीचे चल रहे हैं। तो क्या मुझे अभी, और से मेरा विजन लॉन्ग टर्म है, तो क्या मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या एवरेज आउट करना चाहिए या निकलना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, मेरे एसआईपीज भी चल रहे हैं कुछ, मेरे मतलब सेविंग के कुछ अच्छे एसआईपीज भी चल रहे हैं। तो अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, मुझे एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए या कोई रिव्यू करके या स्टॉप करके? ये 2 सवाल हैं मेरे, प्लीज सजेस्ट करें। थैंक यू। मनीष जी, पीएसयू बैंक्स में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, और बैंकिंग सेक्टर के लिए जैसा अभी मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि इस सेक्टर में वैल्यूएशन वगैरह अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी होगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा अगर कहें कि दूसरी तीसरी कतार के बैंकों की तरफ आपका फोकस ज़्यादा है, तो आपको कहीं थोड़ा सा पोर्टफोलियो एडजस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, और अच्छे मजबूत जो बड़े बैंक हैं उनकी तरफ झुकाव यदि आप ज़्यादा रखें तो शायद वो आपके लिए बेहतर रहेगा लंबी अवधि में। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी है अभी एसआईपी के लिए, तो एसआईपी का जो मसला है, एसआईपी कभी भी गिरते हुए बाजार में रोकनी नहीं चाहिए, बल्कि यदि संभव हो तो आप इस बीच में थोड़ा सा इंक्रीमेंटल अमाउंट ही आप डालते रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा ही ये नीति अपना करके चलें कि गिरते हुए बाजार में आप थोड़ा सा अधिक निवेश करें, लेकिन वहाँ पर आपके लिए सबसे ज़रूरी ये होगा कि जो फंड आपने चुने हैं एसआईपी के लिए, उन फंड्स को आप समय समय पर अच्छे से रिव्यू करते रहें, या अगर ज़रूरत लगे तो इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद लें। फंड्स को रिव्यू करते रहना ज़रूरी है। वैसे हम अपने श्रोताओं को बता दें that every Sunday the market mantra which comes to you every Sunday is specifically for mutual funds. So if you have any more queries on mutual funds, that is the day for you. You can call and ask our expert any queries on the mutual funds. Well, right now we are joined once again by Subhash from Junjunu from Rajasthan. जी सुभाष जी, अपना सवाल पूछें। मार्केट मंत्रा को मेरा नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर, मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिटायर हुआ हूँ। मुझे एनुअली डोमिसिलरी अमाउंट कुछ मिलता है 40-50 हजार रुपए। वो क्या टैक्सेबल होता है क्या, ये जानना था मुझे। ये सवाल कुछ आप एक बार फिर से सवाल दोहराएं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया। थोड़ा आगे चलते हैं। हम एक बार फिर से यदि लौटना चाहेंगे, आगे चलने के बजाय थोड़ा सा पीछे लौटेंगे और शेयर बाजार पर समझना चाहेंगे। बाजार में आज रौनक दिखी है और कारोबारी सप्ताह का पहला दिन है, तो हम क्या उम्मीद करें बाजार में ये जो थोड़ा सा ही सही उछाल हमने देखा है वो बरकरार रहने के आसार हैं, या क्या प्रमुख कारण रहे आज बाजार में तेजी के? देखिए, एक तो बाजार काफ़ी नीचे गिर गया था, वहाँ से थोड़ा सा संभलता हुआ वापस दिख रहा है, और पिछले आप कहें कि पूरे हफ्ते में भी हमें यही दिखा कि बाजार ने थोड़ा सा अपने गिरावट के दौर को रोका है। लेकिन क्या यहाँ से अब आगे और गिरावट नहीं आएगी, ये भरोसा कर लेना अभी शायद मुश्किल होगा। टेक्निकली भी आपको ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस कदम कदम पर मिलते रहेंगे, और फंडामेंटली अभी हमें देखना होगा कि आने वाले तिमाही नतीजे कैसे रहते हैं। ये तिमाही नतीजे बाजार की दिशा को प्रभावित करने वाले प्रमुख फैक्टर के रूप में सामने आएंगे, और अगर ये तिमाही नतीजे कंफर्ट देते हैं, जैसे इससे पहले तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर वाली जो तिमाही थी, उसमें बाजार के लिए बहुत प्रोत्साहन नहीं था, बहुत कोई खुश खबरियां वहाँ पे नहीं थी। अगर चौथी तिमाही के नतीजे जो अभी आएंगे अप्रैल महीने के कह लें दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएंगे, वो सीजन अगर अच्छा रहता है तो फिर बाजार को वहाँ से एक इंसेंटिव मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और बाकी तो अप्रैल के पहले हफ्ते का इंतजार सारी दुनिया को है। बिल्कुल सही बात। आइए चलें कोलकाता। हमारे साथ हमारे एक नियमित श्रोता अतानु साहा, स्वागत है आपका। अतानु, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी सर। माय क्वेश्चन इज मार्केटिंग इज द मोस्ट फीचर्स टू डूइंग बिजनेस सर। Marketing is the most features doing business. So please emphasize something about the government and company level marketing. Thank you very much.
Well, your voice was cracking a bit, so we'll I think move on because कुछ समझ clear आया नहीं. Atanu ji, sorry, your voice was not very clear, so we cannot take. We are moving on to Bhopal now, and Shankar ji has joined us from there. Yes, Shankar ji, please ask a question. Ji. Good evening, Market Mantra team. Good evening, ji. Ji. Sir, how is the PE valuation now for a foreign investor? Are they becoming attractive? Will this trigger some investment? And if the results are going to be, positive for all the companies in next 3 and first quarter and second quarter of this financial year, so would you expect a good return from the stock market? Thank you. जी, शंकर जी, अभी पिछले सवाल में भी यही बात मैं कर रहा था कि अब जो अप्रैल के दूसरे हफ्ते से जो तिमाही नतीजे सामने आएंगे उन पर सबकी नज़र रहेगी. अगर वो नतीजे दूसरी और तीसरी तिमाही के नतीजों के मुकाबले थोड़े बेहतर होने लगे तो उससे बाजार को एक इंसेंटिव मिलेगा, बूस्ट मिलेगा. दूसरी चीज़, FII का आपने जिक्र किया, तो FII सिर्फ हमारे ग्रोथ को नहीं देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि दूसरे बाज़ारों में उन्हें क्या रिटर्न मिल रहा है. उनके अपने होम ग्राउंड में, मोस्टली वो अमेरिका होता है, वहाँ पर उनको फिक्स्ड इनकम में कितना मिल रहा है. अगर उन्हें बिना किसी तरह का रिस्क लिए हुए, जिसमें 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक तो अगर वो हमारे शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं तो इक्विटी का रिस्क होता है, दूसरे रिस्क होता है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट. तो इन दोनों रिस्क के बिना अगर उन्हें अमेरिका में ही एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, जैसा कि पहले उन्हें मिल रहा था जब अमेरिका में बॉन्ड यील्ड काफ़ी ऊंचे हो रहे थे, तो वैसी स्थिति में वो भारत जैसे दूसरे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल करके अपने होम ग्राउंड में ले जाने की कोशिश करते हैं. लेकिन रिसेंटली ये देखा गया है कि बॉन्ड यील्ड वापस थोड़ा नरम हो रहे हैं, कूल ऑफ हो रहे हैं. डॉलर इंडेक्स में भी हमें इसी तरह की नरमी देखने को मिली है. अब रही बात कि चौथी तिमाही के नतीजे ठीक आने लग जाएं तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो हमें FII सेलिंग देखने को मिल रही है पिछले कई महीनों से. अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, यानी बॉन्ड यील्ड घटता रहता है यूएस में, डॉलर इंडेक्स नरम रहता है और साथ में हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से FII वापस आने के बारे में विचार करेंगे. All right. We now have Animesh Srivastav ji from Greater Noida. जी Animesh जी, सवाल पूछें. मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि चाइनीज इकोनॉमी के बीच में भी उठने की बातें आ रही थी, लेकिन दोबारा से वहाँ जो कंज्यूमर का डेटा आ रहा है वो काफ़ी निराशाजनक है, तो इस पे थोड़ी सी अपनी राय दें. धन्यवाद. जी, चाइना की इकॉनमी और वहाँ के डेटा के बारे में कोई बहस करना मुझे इसलिए निरर्थक लगता है कि वहाँ के डेटा पर किसी को कोई भरोसा नहीं होता है. तो वैसे में बड़ा देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, सारे दुनिया के निवेशक उन आंकड़ों पर एक बार विचार तो करते ही हैं, लेकिन भरोसा कोई नहीं करता है. आइए आगे बढ़ें, चलें, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. A question about the Sensex, Manoj, if I may ask Rajiv ji. We just talked about FII selling. Despite the FII selling, we have our Sensex is around 74,000. It hasn't gone too much, hasn't moved up or down from here. Does it also show that our domestic investors are strong and our fundamentals are strong? Because earlier, if this has happened, अगर 10 साल 20 साल पहले इस तरह की बिकवाली होती तो भारतीय बाजार में त्राहिमाम मचा हुआ रहता. जी बिल्कुल, जी. निश्चित रूप से. लेकिन आज की तारीख में FII की इतनी बड़ी बिकवाली को भारतीय बाजार एब्जॉर्व कर रहा है, और आप लगभग हर दिन के आंकड़े देखें, जितनी बिकवाली FII की होती है लगभग उसके मैचिंग आपको DII की, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी खरीदारी के आंकड़े भी आपको दिख जाते हैं. निश्चित रूप से जब FII की सेलिंग बड़े स्तर पे होती है उसका कुछ दबाव बाजार पे रहता है और वो हमें दिखा भी है. लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेला कारण होगा भारतीय बाजार के ऊपर अपने ऊपरी स्तरों से नीचे आने का. उसमें वैल्यूएशन कंसर्न्स जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रहे हैं उनका भी रहा है. जो समझदार निवेशक हैं वो हमेशा जानते हैं किस वैल्यूएशन पर पैसा लगाना है और किस वैल्यूएशन पर पैसा निकालना है. तो आगे FII का सेलिंग का जो असर कम हुआ है उसके पीछे हमारी जो अर्थव्यवस्था की मजबूती है और भविष्य के लिए भरोसा है वो है. साथ में हमारे जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने जो एक नियमित निवेश का SIP के माध्यम से जो एक सबक सीख लिया है, और साथ में उन्होंने ये भी समझ लिया है किसी हद तक कि पहले वो घबराहट में बेचने लगते थे, अब वो वैसा नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं. तो इन बातों का असर निश्चित रूप से है.
आइए चलें अब वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां सिंगापुर को छोड़कर अन्य स्थानों पर आज लिवाली दिखी है। निवेशकों की खरीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.92% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.74% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% नीचे आ गया। हांगकांग का हेंग सेंग 0.7% लाभ के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 0.6% की वृद्धि हुई। यूरोपीय जोन पर चलें तो वहां भी समाचार तैयार की जाने तक लाभ के साथ कारोबार होता दिख रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.06%, फ्रांस का कैक 40 0.23% और लंदन का फुटसी 100 0.2% लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। All right, let's take a look at the oil prices now. Well, global crude oil prices saw an uptick today. The Brent crude oil prices increased 92 cents or 1.30% to $71.50 a barrel. US crude rose 91 cents or 1.35% to $68.09 a barrel. At $71.50 a barrel, it's not too bad, Rajiv. And also, where do you see the oil prices going? And some people are saying that it's going to be a threat to the oil producing countries after a few decades, if not now, because we are moving towards renewable energy. Hydrogen buses are now have been started by the Ministry of Road and Transport. We have also 6% is nuclear energy. We are also harnessing solar energy and wind energy and so on. So where do you see the oil prices going for us? Oil prices have to remain in a range, and the good thing is they are at the lower end of the range. कोई भी भाव जो 70-80 के बीच में है वो हमारे लिए कंफर्टेबल है। उससे बहुत ज़्यादा नीचे की हम उम्मीद अभी नहीं कर सकते, और उसका कारण यह है कि एक तो तेल की जो उत्पादन लागत होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप 70 के नीचे ज़्यादा जाने लगें, 60 के आसपास जाने लगें, तो बहुत सारे जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए वो प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे की वैल्यू हो जाती है। तो वहाँ पर वो भाव सस्टेनेबल नहीं होते हैं। 80 के ऊपर, बल्कि यहाँ तक कि 90 के आसपास भी अगर रहता है तो उतना हमारी अर्थव्यवस्था झेल सकती है। हमारे लिए चिंता तब होगी जब 90 के ऊपर जाने लगे, और खतरे का निशान तब होगा जब 100 के ऊपर जाए। जी। आज की तारीख में 70 के करीब है, हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ही बढ़ ही रहे हैं। वो सब चीजें हमें करनी होंगी, लेकिन ऑयल पर डिपेंडेंस अभी है अभी तो है। जी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं सर्राफा बाजार। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार की जाने तक 0.03% बढ़त के साथ 88,370 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं चांदी 999 फाइन 0.42% घटकर 1,520 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ध्यान दें तो वहां पर समाचार तैयार की जाने तक अप्रैल आपूर्ति वाला सोना 0.15% घटकर 87,861 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मई में आपूर्ति वाली चांदी 0.44% कम होकर 1,294 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यहां पर बहुत संक्षेप में आपकी सलाह समझना चाहेंगे कि सोना का जो वर्तमान स्तर है वह सोने की खरीदारी के लिए, निवेश के लिए विशेष रूप से कितना उचित है, या हाथ जलने के आसार अधिक है? बहुत संक्षेप में। देखिए, फिलहाल काफी तपे हुए भाव हैं जी, तो उसमें सावधानी बरतना बेहतर है। यानी बहुत सावधान रहकर ही सोने की ओर नजर ले जाएं अभी के माहौल में, खास तौर से जो वर्तमान स्थितियां कह रही हैं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। All right, friends, before we close, here's a reminder of the headlines. India and New Zealand exchanged 5 agreements, also announced the launch of negotiations on free trade agreement. Benchmark domestic indices settled the session on a positive note. Sensex jumps 341 points. Nifty closes above 22,500. And crude oil prices rise. Brent crude trades at $71.50 per barrel. On that note, friends, it's time for us to bid adieu. So this is myself, Lalema Aneja Dang, my co-anchor Manoj Pathak, and our expert Rajiv Ranjan signing off. We'll see you again tomorrow at 6:30 sharp. Till then, namaskar.